السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ بہار اسمبلی انتخابات کے نتائج آ چکے ہیں۔ بہار کے اقتدار سے 15 سال کی جلاوطنی ختم کرنے کے ارادے سے انتخابی میدان میں داخل ہوئے راشٹریہ جنتا دل کا انتظار مزید 5 سال کے لیے آگے بڑھ گیا ہے۔ عوام نے ایک بار پھر نتیش کمار کے سر پر بہار کی طاقت کا تاج رکھ دیا ہے۔ 243 اسمبلی سیٹوں میں سے این ڈی اے کو 125 اور مہا گٹھ بندھن کو 110 پر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ قبل ازیں رجحانات میں تیجسوی یادو زیر قیادت مہا گٹھ بندھن کو سبقت حاصل تھی، لیکن بعد ازاں این ڈی اے مطلوب اکثریت کے ساتھ اقتدار تک پہنچ گئی۔ مہا گٹھ بندھن اقتدار کے لیے معمولی نشستوں سے پیچھے رہا۔ مدھیہ پردیش کے بشمول 11 ریاستوں میں منعقدہ ضمنی اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ 59 نشستوں میں 40 پر پارٹی کو فتح حاصل ہوئی۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی نے اپنا موقف مزید مستحکم کر لیا ہے۔ گجرات میں 8 نشستیں کانگریس سے واپس لے لی گئی ہے۔ اتر پردیش میں 6 نشستوں پر قبضہ برقرار رہا۔ منی پور، ہریانہ، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، کرناٹک، ناگالینڈ، اڑیسہ اور تلنگانہ میں ضمنی انتخابات میں مدھیہ پردیش میں کانگریس کا انتہائی ناقص مظاہرہ سامنے آیا ہے۔ سی پی آئی ایم، کانگریس اور آر جے ڈی نے 3 اسمبلی حلقوں میں دوبارہ ووٹوں کی گنتی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان جماعتوں کا کہنا ہے کہ کم از کم 3 اسمبلی حلقوں میں دھاندلیاں کی گئی ہے، لہٰذا دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی جانی چاہیے۔ اسی دوران آر جے ڈی نے الزام عائد کیا کہ نتیش کمار کی حکومت کم از کم 10 نشستوں پر ووٹوں کی گنتی میں تاخیر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کامیاب ہونے والے امیدواروں کو سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیے گئے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے 5 امیدواروں نے بہار اسمبلی انتخابات میں تاریخ ساز کامیابی حاصل کی ہے۔ مجلس کے 5 اسمبلی حلقوں سے امیدواروں نے اپنی کامیابی کے ذریعے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اسدالدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی قیادت میں مجلس نے بہار کے اسمبلی انتخابات میں 20 امیدواروں کو انتخابی میدان میں اتارا تھا۔ ان میں سے 5 نے اپنی کامیابی درج کر لی ہے۔ اس طرح سے مجلس کے 5 امیدوار بہار اسمبلی میں قدم رکھیں گے۔ بہار ملک کی تیسری ریاست بن گئی ہے جہاں سے مجلس کے منتخبہ نمائندے ایوانوں میں مسلمانوں اور پسماندہ طبقات کے علاوہ بے آوازوں کی آواز بنیں گے۔ کانگریس نے اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسدالدین اویسی کو ووٹ کاٹنے والے لیڈر قرار دیتے ہوئے کہا کہ بہار کے اہم ترین سیمانچل علاقے میں اے آئی ایم آئی ایم کی وجہ سے بی جے پی کو فائدہ پہنچا، جس کی وجہ سے بہار میں بی جے پی واحد سب سے بڑی جماعت کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئی ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے اویسی کو ووٹ کٹر قرار دیا اور تمام سیکولر جماعتوں سے کہا کہ وہ ایم آئی ایم سے خبردار رہیں۔ بی جے پی نے اویسی صاحب کو بہار اسمبلی انتخابات میں سیکولر ووٹ کاٹنے کے لیے استعمال کیا۔ بہار اسمبلی انتخابات اور دیگر ریاستوں کے ضمنی انتخابات میں کانگریس کے بہتر مظاہرہ کرنے میں ناکامی کے بعد پارٹی قائدین نے آج ایک مرتبہ پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر سوال اٹھایا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مشینیں مکمل طور پر درست اور ہیر پھیر کرنے سے پاک ہے۔ مدھیہ پردیش کے سابق چیف منسٹر دگ وجے سنگھ اور دلت لیڈر ادت راج نے دعویٰ کیا کہ ای وی ایمز کو ہیک کیا جا سکتا ہے اور اس میں الٹ پھیر ممکن ہے۔ دوسری طرف ان کی پارٹی کے رفیق کارتک چدمبرم نے کہا کہ ای وی ایم سسٹم ٹھیک ٹھاک اور قابل انحصار ہے اور اب ای وی ایم کو دوش دینا بند کر دینا چاہیے۔ دگ وجے سنگھ نے رگنگ کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کوئی بھی ترقی یافتہ ملک ای وی ایم کا استعمال نہیں کر رہا ہے؟ اگر اس میں ایک چپ ہے تو پھر وہ نمبرنگ سے محفوظ نہیں ہو سکتی۔ مہاراشٹر کے رتنا گری علاقے میں مفرور مافیا ڈان داؤد ابراہیم کسکر کی ملکیتی کم از کم 6 جائیدادوں کو تقریباً 23 لاکھ روپے میں ہراس کیا گیا ہے۔ کامیاب بولی دہندوں میں وکیل اجے شریواستو شامل ہیں جنہوں نے 2 جائیدادیں خریدی ہیں اور سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ بھوپیندر بھردواج نے 4 اثاثے خریدے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ خود انحصار ہندوستان سے عالمی معیشت کو فروغ حاصل ہوگا۔ ہندوستان کا پختہ یقین ہے کہ معاشی ہمہ گیریت اور قومی صلاحیت سازی کے ذریعے ایس سی او کے رکن ممالک عالمی وبا سے درپیش ہونے والے بحران سے باہر نکل سکتے ہیں۔ معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی نے مشورہ دیا کہ اقتصادی ہمہ گیریت اور قومی صلاحیت سازی کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شانگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب کیا۔ بہار اسمبلی انتخابات اور مختلف ریاستوں کے ضمنی انتخابات میں بی جے پی کے مظاہرے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ انتخابات کے نتائج سے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مودی ہے تو ممکن ہے، اور پارٹی نے مستقبل میں ہونے والے انتخابات کے لیے بھی اشارہ دے دیا ہے۔ اتر پردیش بی جے پی کے دفتر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی اور قیادت میں این ڈی اے نے بہار میں تمام خیاساریوں کو مسترد کرتے ہوئے اپنی کامیابی درج کی ہے اور مختلف ریاستوں کے ضمنی انتخابات میں بھی پارٹیوں میں کامیابیاں ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے ثابت کر دکھایا ہے کہ مودی ہے تو ممکن ہے۔
राजस्थान में जाट और मुस्लिम बरादरियों के मुख्तलिफ ग्रुप्स ने एक मरतबा फिर तहफुजात का मुतालबा शुरू किया है। गुज्जरों की जानिब से सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में कोटा फराहम करने का मुतालबा करते हुए रियासत गिर एहतजाज किया जा रहा है। इसको देखते हुए जाट और मुसलमानों ने भी तहफुजात का मुतालबा शुरू कर दिया। गुज्जर बरादरी के अरकान ने वेलुपुरा में दिल्ली मुंबई शाहराह पर रास्ता रोको एहतजाज करते हुए ट्रैफिक रोक दिया। गुज्जरों का एहतजाज 10वें दिन में दाखिल हो गया है। बरादरी का एहतजाज हुकूमत और इनके कायदीन के दरमियान बातचीत नाकाम होने के बाद शुरू किया गया। इनके साथ साथ जाट बरादरी के कायदीन ने भरतपुर और ढोलपुर अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर महापंचायत मुनक्किद करते हुए हुकूमत से तहफुजात का मुतालबा शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर लीलाकरण शर्मा ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को एक हालिया बयान पर हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती को बागाना बयान देने की पादाश में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुबैना तौर पर कहा था कि वादी में नौजवान जेल जाने के बजाय बंदूक उठाने को तरजीह दे रहे हैं। शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए बताया कि हम महबूबा मुफ्ती के बयान की मदम्मत करते हैं। ये एक बागाना बयान है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और इन्हें जेल भेज देना चाहिए। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा ट्वीट में दावा किया है कि अमेरिकी सदारती इंतखाबात में वो जीत गए हैं। उन्होंने कहा कि हम जीत जाएंगे। ट्रंप ने अभी तक अमेरिकी सदारती इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया। वो बार बार ट्वीट करते हुए अपनी बड़ी कामयाबी का दावा कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स के खिलाफ धोखाधड़ी का भी इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने जो बाइडेन को ही कामयाब करार दिया। उन्होंने कोई सबूत पेश किए बगैर कहा कि जो बाइडेन इन इंतखाबात को अपने हक में करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का यह भी दावा है कि रायदही के दिन हजारों लाखों वोट गैर कानूनी तौर पर 8 बजे रात के बाद भी मौसूल होने लगे। इस दावे के बाद ट्विटर पर इन्हें मजाक का मौजू बनाया गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की एक गहरे और मुजरिमाना हिसार से बाहर निकल आया है। एक सदी कबल शुरू हुए आज़ादी की जंग अब ज्यादा मजबूती के साथ लड़ी जा रही है। जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की 22वीं बरसी के मौके पर सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की को दुनिया के 10 बड़ी मईशतों में शामिल करने का हदफ पूरा किया जाएगा। तेलंगाना रियासत में तजस्सुस से भरपूर दोबाक असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव ने अपनी हरीफ हुक्मरान टीआरएस की उम्मीदवार एस सुजाता के खिलाफ 1079 वोटों की मामूली अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए सनसनी पैदा कर दी। हर राउंड में बदलती हुई सूरत हाल से ऐसा लग रहा था जैसे 2020 मैच चल रहा हो। 23 राउंड पर मुश्तमिल वोटों की गिनती में इब्तिदा से बीजेपी को सबकत हासिल थी। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशनों की निशानदही का काम 21 नवंबर तक मुकम्मल करने के लिए इलामिया जारी किया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक जीएचएमसी एक्ट के सेक्शन 29 के तहत रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से वार्ड्स की निशानदही के बाद कमिश्नर जीएचएमसी की मंजूरी के जरिए इनकी तशहीर की जानी चाहिए। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वज़ीर बल्दी नजवनस केटीआर ने दोबाक असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार की शिकस्त पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि टीआरएस कभी कामयाबी पर इतराती नहीं और ना ही कभी शिकस्त पर मायूस होती है। टीआरएस के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी और शिकस्त टीआरएस के लिए कोई नई बात नहीं है। टीआरएस के क़याम से अब तक टीआरएस ने ऐसे कई दौर देखे हैं। कभी कामयाबी पर इतराया नहीं गया और ना ही शिकस्त से मायूस हुए। ताहम दोबाक का नतीजा हमारी तौक़्क़ात के बरअक्स है। फिर भी अवाम का फैसला हमें कबूल है और हम पार्टी की शिकस्त का जायजा लेंगे। दोबाक के ज़मीनी इंतखाब के नतायज जहां सनसनीखेज हैं वहीं ताजुब खेज भी हैं। 11 उम्मीदवारों को नोटा से कम वोट हासिल हुए हैं। वज़रे के दोबाक के ज़मीनी इंतखाबात में 23 उम्मीदवारों ने मुकाबला किया था, जिनमें सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को हासिल हुए। दूसरे नंबर पर हुक्मरान टीआरएस रही। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। एक आज़ाद उम्मीदवार चौथे मुकाम पर है, जबकि नोटा को 552 वोट हासिल हुए हैं। ताजुब की बात यह है कि 11 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें नोटा से कम वोट हासिल हुए हैं, जिससे इस इंतखाब में हुक्मरान टीआरएस को लगभग इतने ही वोटों से शिकस्त हुई और बीजेपी ने सनसनीखेज कामयाबी हासिल की। हैदराबाद के इलाके सईदाबाद तक संतोष नगर तामीर किए जाने वाले स्टील ब्रिज के काम के आगाज के पेश नज़र हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इलाके चंचलगुड़ा, सईदाबाद, धोबी घाट, आईएस सदन, संतोष नगर रोड पर 3 माह के लिए ट्रैफिक तहदीदात आयद किए जा रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार के मुताबिक जीएचएमसी की जानिब से 338 किलोमीटर तवील स्टील ब्रिज के तामीराती काम का आगाज MVR इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में ट्रैफिक तहदीदात आयद किए जा रहे हैं। मलकपेट नलगुंडा क्रॉस रोड से आईएस सदन संतोष नगर जाने वाली ट्रैफिक का रुख मलकपेट फायर स्टेशन, अकबरबाग, सईदाबाद कॉलोनी, संकेश्वर बाजार, सिंगारेनी कॉलोनी, आरटीसी कॉलोनी रोड से आईएस सदन की सिमत कर दिया जाएगा। इसी तरह बीएमआल चौराहे से नलगुंडा क्रॉस रोड की तरफ आने वाली ट्रैफिक का रुख आईएस सदन, चंपापेट, सिंगारेनी कॉलोनी, सईदाबाद कॉलोनी, अकबरबाग और मलकपेट फायर स्टेशन की तरफ कर दिया जाएगा।
अनिल कुमार ने कहा कि गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस चंचलगुड़ा तक यादगिरी थिएटर तक स्टील ब्रिज की तामीर की जा रही है ताकि इस मसरूफ तरीन रोड पर ट्रैफिक बहाव में आसानी पैदा हो। बताया जाता है कि ट्रैफिक तहदीदात 11 नवंबर से 11 फरवरी 2021 तक नाफिज रहेंगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरहद पर फायरिंग में निजामाबाद के फौजी जवान महेश की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने अपने पैगाम में कहा कि महेश मुल्क की तारीख में एक ऐसे फौजी के तौर पर याद रखे जाएंगे जिन्होंने मुल्क की दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। उन्होंने शहीद जवान महेश के अफराद खानदान को 50 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शहीद के अफराद खानदान में से किसी एक फर्द को काबिलियत की मुनासिबत से सरकारी मुलाजमत फराहम की जाएगी। इसके अलावा महेश के खानदान को मकान राजी अलाट की जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद की तरक्की के बारे में हुकूमत की जानिब से बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन तरक्याती कामों की रफ्तार की हकीकत उस्मानगंज में नाले की तोसी के काम से बेनकाब हो चुका है। पुराने शहर से नए शहर के लिए अफजलगंज और मौजम जाही मार्केट वाहिद रास्ता है, लेकिन उस्मानगंज इलाके में गुज़िश्ता 4 माह से नाले की तोसी का काम जारी है, जिसके नतीजे में ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। मजलिस बल्दिया ने 1 माह में नाले की तोसी का काम मुकम्मल करने का ऐलान करते हुए ट्रैफिक तहदीदात नाफिज की थी, लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू करदा काम आज तक मुकम्मल नहीं हुए हैं, जिसके नतीजे में एक तरफ मसरूफ तरीन तिजारती इलाका उस्मानगंज और मौजम जाही मार्केट के सैकड़ों ताजिर परेशान हैं, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक का रुख दीगर इलाकों में मुड़ने के नतीजे में रोज़ाना घंटों ट्रैफिक जाम रहती है और अवाम को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने में दुश्वारियों का सामना है। उस्मानगंज एक ऐसा इलाका है जो नए और पुराने शहर को जोड़ता है और इस इलाके से हाई कोर्ट के जजेस और दीगर अहम शख्सियतें गुजरते हैं। बारिश के मौके पर उस्मानगंज और बेगम बाजार का इलाका बुरी तरह मुतासिर होता रहा, जिसके बाद नाले की तोसी का फैसला किया गया। काम की सुस्त रफ्तारी के नतीजे में ताजिरों और अवाम की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सैकड़ों ताजरीन ने शिकायत की है कि गुज़िश्ता 4 माह से इनका कारोबार ठप हो चुका है। अवामी नुमाइंदों और सरकारी ओहदेदारों को जंगी खुतूत पर कामों की अंजामदही से कोई दिलचस्पी नहीं है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से शहर में बारिश और सैलाब के मुतासरीन में इमदादी पैकेज की तकसीम का 11 नवंबर से आगाज़ हो रहा है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में हज हाउस से इमदादी पैकेज की मुतासरा इलाकों को रवानगी का आगाज़ करेंगे। हज हाउस नामपल्ली में बाद मुतासरा खानदानों में इमदादी किट्स की तकसीम के जरिए इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। मोहम्मद सलीम ने खुसूसी दिलचस्पी के जरिए 20 लाख रुपए मालियाती इमदादी अशिया तकसीम का फैसला किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने बिहार में जमात की शानदार कामयाबी को तारीखी करार देते हुए कहा कि आज का दिन हमारी जमात के लिए मसरत का दिन और तारीखी दिन है। बिहार के लोगों ने हमें न सिर्फ अपने वोटों बल्कि मोहब्बतों से नवाजा है और मेरे पास इनका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। अपनी क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने सीमा अंचल के अवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए इनको यकीन दिलाया कि जिस मकसद के लिए हमने बिहार में सियासी सफ़र का आगाज़ किया था, इसके हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। ओवैसी ने कहा कि सीमा अंचल बिहार और पूरे भारत का पिछड़ा हुआ इलाका है। 60 साल से इसके साथ नाइंसाफ़ी की गई। सीमा अंचल को इंसाफ दिलाने और हकीकी सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। ये पूछे जाने पर कि मजलिस के इलेक्शन में हिस्सा लेने से आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को क्या नुकसान हुआ है, तो ओवैसी ने बताया कि सीमा अंचल के राय दहिंदे किसी के गुलाम या नौकर नहीं है या फिर किसी मखसूस सियासी जमात ने इन्हें यरगुमाल नहीं बनाया। राय दहिंदे आज़ाद हैं और अजीम हैं, वो किसी को भी अपनी खिदमत के लिए मुंतखब कर सकते हैं, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने इशारा दिया है कि मजलिस बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी इंतखाबात लड़ेगी।